वी डिस्कस यस्टरडे, कल क्या डिस्कस किया था? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे? वी डिस्कस द टाइप ऑफ सिस्टम्स। क्या क्या डिस्कस किया था? एक बार से क्विक रिवीजन ले लेते बेटा। वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोज सिस्टम, ध्यान से देखेंगे। वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोज सिस्टम, वी डिस्कस्ड अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप करो रे बाबा, what we discussed yesterday. I want each and everyone to type in chat box. We discussed isolated system and we discussed open system. We discussed open system. Now closed system के बारे में कुछ याद आ रहा है बेटा? Are you able to recollect something for closed system? जल्दी से बोल दीजिए, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्लोज सिस्टम के लिए? टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आर यू एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग? फटाफट से बताइए, टेल मी क्विकली। ओहो, what a beauty! What a beauty! What a beauty! Excellent, excellent, excellent. क्या बात है। देखो, here I am writing system. Mass interaction. Energy interaction. Energy interaction. So in case of closed system, what is the situation beta? We don't have any mass interaction, but we will be having the energy interaction. In case of isolated system, there is no mass interaction, there is no energy interaction. And in case of open system, you can have mass interaction, you can have एनर्जी इंटरेक्शन। आर यू एबल टू रिकलेक्ट? फटाफट से बोलेंगे, आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यस 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 यस, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? मैंने बताया था कल आपको, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स, क्लोज सिस्टम इज आल्सो, अरे लाइक करो रे बाबा, क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल मास, and whereas open system is also known as what? Control volume. Control volume. Chal. Now let us move forward. There is one interview question beta. There is one interview question. Number of times people are asking this question in interviews. What is control surface? बताइए बेटा, किसको पता है? किसको पता है? What is control surface बेटा? Hello beta Rahul, how are you? Yes, yes, yes. Any intelligent student of the class can tell me what is control surface? फटाफट से बोलेंगे बेटा, control surface क्या होता है? What is control surface? Control surface क्या होता है बेटा? Yes, 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 yes. Control surface क्या होता है? फटाफट से बोलिए बेटा। देखो, we know that closed system can be written as control mass. क्लोज सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कंट्रोल मास लिख सकते हैं। वी नो दैट open system can be written as what? Control volume. And remember, whenever we are using the term control mass or control volume, in such case
In such case, boundary is known as control surface. I hope each and everyone is clear what I am saying. जब भी आप closed system को, whenever you will call closed system as control mass, you will call open system as control volume, then we will not use the word boundary, we will be calling as what? Control surface. यहां तक सब लोग clear हैं? I hope each and everyone is clear till here. Yes, excellent. So when the term, देखो बेटा ध्यान से, when the terms control mass and control volume are used, then system boundary is known as what? Control surface. I hope each and everyone is clear till here. Type in chat box if you are clear till here. Very good Chetan, very good बेटा. यहां तक सब लोग clear हैं? यहां तक सब लोग clear है तो आगे बढ़ेंगे बेटा. If you are clear till here, then we will be moving forward. Now, let us talk about thermal power plant. बेटा thermal power plant में क्या होता है? ध्यान से सुनना. You will be having the condenser. From the condenser, thus water in saturated liquid state will be coming out. This saturated liquid will be entering the pump where you will be giving some power input, and this saturated liquid will be converted into subcooled liquid. Then this subcooled liquid will be entering the boiler and superheater. Here you will be supplying the heat, and now from the outlet of the superheater I will be getting the superheated vapor. This superheated vapor will be rotating the blades of the turbine. I will be getting the power output, and now at the outlet of the turbine I will be having the wet vapor which will be entering the condenser. Here I will be losing the latent heat, and this wet vapor will be converting into what? Saturated liquid. इतना तो सबको पता है, वही चीज लिख रहा हूं, लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. बेटा यहां पे मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. यहां पर कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. लुक एट हियर. Here I am having saturated liquid state. Now this saturated liquid state is entering the pump where we are giving some power input. Now at the outlet we will be getting the subcooled liquid. ये क्या होती है सब स्टेट पूरे डिटेल में बताने वाला हूं बेटा, फिलहाल आप जान लो. We will be getting the subcooled liquid. Now what is going to happen beta? In boiler we will be supplying the heat. Let me write Q dot as that, Q dot S1 ऐसा मान लो. Then in superheater we will be supplying the heat, Q dot S2, and now the subcooled liquid will be converting into superheated vapor. ये जो subcooled liquid है ये superheated vapor में convert हो जाएगा. Now this superheated vapor will be entering the turbine. It will be rotating the turbine blades, and of course I will be getting the power output W dot O, and now at the outlet I will be having the wet vapor. Outlet of the turbine I will be having the wet vapor. Now in condenser I will be having the heat rejection. Latent heat will be getting rejected. Let me say at the rate of Q dot R, and then I will be getting the saturated. Now why I have given you all these examples? मुझे एक चीज बताना बेटा. Pump, listen carefully. This pump, anyone in the class, this pump is behaving as an open system or closed system or isolated system. बोलिए बेटा ये जो पंप है ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है? क्विकली आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर मी दिस. आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर मी दिस. बोलिए ये जो पंप है ये पंप ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम? अरे वेरी गुड है रे बाबा. टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स. Excellent, excellent, excellent. I want each and everyone to type in chat box and tell me. Yes, yes, Mayur, you are absolutely correct. Gautam, Jayesh, very good, beta. Yes, it is behaving as an open system. Why? Because mass is crossing the boundary. Mass is crossing the boundary, and in fact energy is also crossing the boundary. If I ask you this boiler is behaving as open system, yes, boiler is also behaving as an open system. Superheater is also behaving as an open system. This turbine is also behaving as an open system. This condenser is also behaving as an open system. तो अगर आप thermal power plant देखेंगे, in thermal power plant you are having number of open systems. Pump हो गया, boiler हो गया, superheater हो गया, turbine हो गया, condenser हो गया. These all are the examples of the open systems.
because continuously the mass will be flowing, mass will be crossing the boundary of the system. I hope each and everyone is clear till here. I hope each and everyone is clear till here. फटाफट से बोल देंगे बेटा यहां तक क्लियर है आप लोग? Yes, yes. Now if I ask you one question, अब देखो ये तो सबको पता चल गया, आप ध्यान से सुनना बेटा, एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. This water circuit of thermal power plant, this water circuit of thermal power plant is behaving as closed system or open system. देखो बाउंड्री बना रहा हूं, this is boundary. This water circuit of thermal power plant will be behaving as closed system or open. 100% it will be behaving as closed system only. I'm talking about water circuit. मैंने ये पूरा ले लिया बेटा, ये पूरा ले लिया. अगर मैंने ये पूरा ले लिया, we are having only the energy interactions. यहाँ work interaction हो रहा है, यहाँ पर heat interaction हो रहा है. Here I am having the work interaction, here I am having the heat interaction. Only the energy interaction is taking place. There is no mass interaction. That means the water circuit of the thermal power plant will be behaving as what? Closed system, because there is no mass interaction. Only the energy interactions in the form of heat and work is taking place. Yes, very good, very good, very good. What a beautiful conclusion for my students. Pump, boiler, superheater, turbine, condenser are the examples of open system, whereas water circuit of the thermal power plant neglecting water loss is a closed system. I hope each and everyone is clear till here, and if you are clear till here, I am having one beautiful interview question for you people, my friends. Next is one interview question. देखो इधर. Oh my god, what is the difference between boiler and steam generator? Any intelligent student of the class can tell me. I'm waiting for your answer. Any intelligent student of the class can tell me what is the difference between boiler and steam generator. फटाफट से बताएंगे बेटा. जो लोग गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, देखते रहेंगे, बिकॉज आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस. मैं मैक्सिमम पोर्शन इस सिलेबस का कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स का कवर करने वाला हूं बाय गेट 2021. आपको चिंता नहीं करनी है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. व्हाटएवर द क्लासेस आई कैन टेक, आई विल टेक फॉर यू पीपल. बाकी जो 2022 के हैं, 23 के हैं, गेट 2022, 23, इंजीनियरिंग सर्विस 2022, इंजीनियरिंग सर्विस 2023, देखते रहो. जो लोग कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखते रहो बेटा. पूरे कॉलेज लेवल के कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं. यू नीड नॉट टू वरी. पीके नाक सॉल्व करने वाले हैं बेटा. विल बी सॉल्विंग द पीके नाक क्वेश्चंस आल्सो. सो यू नीड नॉट टू वरी. अब आपको कॉलेज में भी मार्क्स आएंगे, गेट में भी मार्क्स आएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मार्क्स आएंगे. मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनामिक्स कोर्स की. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नो छापा रमेश, नो बेटा, नो. आहा नहीं समझे. देखो अब मैं समझाऊंगा बेटा, अब मैं समझाऊंगा. नाउ लिसन केयरफुली. नो वन इज गिविंग द राइट आंसर. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. बेटा आपने टीएस डायग्राम देखा होगा ना. अगर आपने थोड़ा सा थर्मो पढ़ा है, टीएस ऐसा डोम देखा होगा आपने. ऐसा डोम देखा होगा बेटा. ऐसा डोम देखा होगा बेटा आप लोगों ने, है ना. अच्छा बेटा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? एनीवन इन द क्लास? बेटा इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ना, याद आ रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, जो भी आपका मन हो. इसको क्या बोलते थे बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? फटाफट से बोलेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सैचुरेटेड वेपर कर्व. सैचुरेटेड वेपर कर्व. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. ये क्या होता था बेटा? दिस वाज किसिंग पॉइंट, मींस क्रिटिकल पॉइंट. एक बार लिख देता हूं, कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो. मैं लिख देता हूं बेटा, जिनको याद नहीं आ रहा एक बार मैं लिख देता हूं. वैसे तो ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आई विल टेल. दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. This is what? This is saturated vapor curve. And this is what? What is this top? Kissing point. Critical point.
बच्चा किसी को याद है? एनीवन इज एबल टू रिकलेक्ट? यहां क्या होता था बेटा? सबकूल्ड लिक्विड. Here I was having, yes, here I was having subcooled liquid. Here I was having superheated vapor. Superheated vapor. On this line I was having saturated liquid. State की बात कर रहा हूं. On this line we were having saturated vapor. अगर मैं एक constant pressure line बनाने की कोशिश करूं, if I try to represent a constant pressure line, कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखना बेटा ध्यान से. हल्का सा कर. Now listen carefully beta. This is isobar where the pressure is constant. Now listen carefully beta. Boiler, सुनना ध्यान से. Remember, boiler cannot produce superheated vapor. अगर आपके पास कोई बॉयलर है, जनरली एट द आउटलेट ऑफ बॉयलर, देखो ध्यान से सुनो, what you need at the inlet of turbine beta, what you need at the inlet of turbine, ध्यान से सुनना बेटा, what you need at the inlet of turbine, you need superheated vapor. You need superheated vapor. Remember, at the outlet of a boiler you will never get superheated vapor. You will be having the dry saturated vapor. At the outlet of boiler you will always have dry saturated vapor. Now to convert this dry saturated vapor into superheated vapor, you will be using this superheater. You will be using this superheater. तो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से, इस डायग्राम पर ध्यान से देखना बेटा. At the outlet of boiler you will be here, आप यहां पे होंगे, you will be having the dry saturated vapor, but turbine needs superheated vapor. So what you do, you apply one superheater, you will be applying one superheater which will be converting this dry saturated vapor into superheated vapor. आपको टरबाइन के इनलेट पर यहां पर चाहिए, तो रिमेंबर बॉयलर नेवर प्रोड्यूसेस सुपरहीटेड वेपर. बॉयलर यहां पे लाके छोड़ देगा. ध्यान से देखना बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा. बॉयलर आपको यहां पर लाकर छोड़ेगा. दिस विल बी एट द आउटलेट ऑफ बॉयलर. देखो ध्यान से सुनना बेटा. लेट अस सपोज यहां कहीं पर इनलेट ऑफ बॉयलर है, इनलेट ऑफ बॉयलर. दिस इज द स्टेट एट इनलेट ऑफ बॉयलर. नाउ व्हाट बॉयलर विल डू, बॉयलर विल ब्रिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. Outlet of boiler you will be having this. Now it is the function of superheater to take from here to here. So this is at the outlet of superheater. बात समझ में आ रही है? Now listen carefully. Boiler will be giving you, at the outlet of the boiler you will be having dry saturated vapor, and this superheated vapor will be converting that dry saturated vapor into superheated vapor. And this combination of boiler and superheater, and this combination of boiler and superheater is known as steam generator. ये जो combination होता है boiler का और सुपर हीटर का, इसी को ही बोला जाता है बेटा स्टीम जनरेटर. दिस इज नोन एज स्टीम जनरेटर. एनटीपीसी के इंटरव्यू में जाओगे, बार्क के इंटरव्यू में जाओगे, इसरो के इंटरव्यू में जाओगे, बीएचएल के इंटरव्यू में जाओगे, ये सब पूछे जाते हैं बेटा. दिस इज योर स्टीम जनरेटर. दिस इज योर स्टीम जनरेटर. सुनो कंक्लूजन. व्हाट इज द आंसर? लिसन केयरफुली. Boiler produces dry saturated vapor while steam generator produces superheated vapor. Steam generator consists of boiler and superheater. I hope each and everyone is clear what I am trying to tell you.
उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही है बेटा। याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉयलर एंड स्टीम जनरेटर। बॉयलर कैन प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली ड्राई सैचुरेटेड वेपर, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में देखोगे तो यू डोंट नीड जस्ट ड्राई सैचुरेटेड वेपर, यू नीड सुपर हीटेड वेपर। इसीलिए क्या होता है पावर प्लांट में, जैसे ही बॉयलर से ड्राई सैचुरेटेड वेपर बाहर निकलता है उसको डाल देते हैं सुपर हीटर में। दैट विल गो इनसाइड द सुपर हीटर सो दैट ड्राई सैचुरेटेड वेपर विल बी कन्वर्टिंग इनटू सुपर हीटेड वेपर। अब वो जाएगी टरबाइन में और झमाझम पावर प्रोड्यूस होगी रे बाबा। आर यू क्लियर टिल हियर? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। यस 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 नेगी सोल्जर्स, आर यू क्लियर टिल हियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड वेरी गुड। ओहो ओहो हसी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए यहां से बोलिए बेटा, यहां से फिर आगे चले, यहां से आगे चलने वाले हैं। बोलिए बेटा, बोलिए। थैंक यू सो मच हसी। चलिए बेटा आगे चलेंगे। बोलिए यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे तो हार्ट का सिंबल बना देंगे रे बाबा। इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हियर, मेक द हार्ट सिंबल, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू टॉपिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं रे बाबा। अरे मजा आ गया रे बाबा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस यस, अरे मजा 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 मजा। यस 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 यस, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। आ रहे नेगी सोल्जर्स आर ऑन फायर रे बाबा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो बेटा, नाउ नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? बोलो रे बाबा। जब मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी, व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी? फटाफट से बोलिए, व्हाट इज प्रॉपर्टी? आई डोंट लाइक दोज हु आर कमिंग लेट, प्लीज कम ऑन टाइम रे बाबा, बिल्कुल टाइम पर आते जाएंगे। अरे चंपू क्लियर है रे बाबा। चलो वेरी गुड। व्हाट इज प्रॉपर्टी? इज प्रॉपर्टी फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में बेटा, फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, व्हाट इज प्रॉपर्टी? When I'm saying property, 90% of the students are going to give this definition. जब मैंने प्रॉपर्टी बोला, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी बोला, आप चैट बॉक्स में देख लेना, आई एम नॉट looking at the chat box, 90% of the students will be giving this definition, sir property is the characteristic of the system. और बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और जैसे आपने सिर्फ इतना बोल के रुक गए, इंटरव्यू समझ जाएगा कितने डिटेल में आपको पता है, पता चल जाएगा लेवल. He will come to know at what level you know the thermodynamics. Now Negi soldiers, listen carefully. You are not ordinary student now. You are having the tag of Negi soldiers. बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा. I'm telling you, जब एक बार आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो पूरा सीख कर जाएंगे बेटा. Property is the characteristic of the system to which a number can be assigned, to which a number can be assigned at any given instant of time. At any given instant of time. सर नहीं समझ में आया बेटा, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. Let us suppose I am having a rigid container. Let us suppose I am having a rigid container. This rigid container is having some gas. This rigid container is having some gas. Now 100% this gas will be having some mass. This gas will be having some volume. This gas will be having some temperature. This gas will be having some pressure. This gas will be having some thermal conductivity. This gas will be having some dynamic viscosity. Along with that, this gas will be having some color.
this gas will be having some taste, this gas will be having some smell. But what is the difference? I have written two group of characteristics. अगर आप देखेंगे मैंने जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक थी वो दो जगह पर लिखी है. अरे चंपू, one is this, one is this. Now I'm asking you one question. Of course, whatever I have written, whatever all are the proper, all are the characteristics of the gas. Yes, ये भी characteristic है. These all are characteristics of the gas, and these are also the characteristics of the gas. There is no doubt. उसमें कोई doubt ही नहीं है. There is no doubt. Both are the characteristics of the gas. But what is the difference? What is the difference? Can I give some number to mass? अरे दे सकता हूं ना. 5 kg, 10 kg, 20 kg. Can I give some number to volume? Yes. 2 meter cube, 1 meter cube, 0.5 meter cube. Can I give some number to temperature? Yes. 200 Kelvin, 300 Kelvin, 400 Kelvin. Can I give some number to pressure? Yes. 2 bar, 1 bar, 0.5 bar. Can I give some number of thermal conductivity? Yes, of course. 0.5 watt per meter square per Kelvin, 0.021 watt per meter per Kelvin, watt per meter per Kelvin. Viscosity? Yes. I can give 0.1 kg per meter per second. Can I give some number to color? नहीं दे सकता नंबर. Color is 2, color is 5, ऐसा बोलता है क्या कोई? Can I give some number to taste? अरे 7 taste है, अरे 8 taste है, अरे 20 taste है. No. स्मेल को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. बेटा ध्यान से रखना. I totally agree. These are the characteristics of the system. इसमें कोई डाउट नहीं है. But they are not the property. But they are not property. You cannot assign a number. They are not the property. You cannot assign the number to these characteristics. Whereas if you see here, whatever the characteristics I have written here, you can assign the number 100%. They are the properties. बात क्लियर हो रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? नेगी सोल्जर सबसे एक कदम आगे रहेंगे. लोग बोलेंगे, people will say, लोग बोलेंगे, लोगों को बोलने दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम. तो आपको एक कदम आगे रहना बेटा. आपको एक कदम आगे रखना. You should be one step forward. You should be one step ahead of the ordinary non-Negi soldiers. Yes, yes. Property is the characteristic of the system to which a number can be assigned at any given instant of time. Are you clear till here? बोलो रे बाबा. Are you clear till here? I want each and everyone to type in chat box. If you are clear till here, फटाफट से बोलेंगे बेटा. अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो बोलिए, फिर मैं आगे चलूंगा बेटा. Now, what are the types of properties? Types of properties बताइए बेटा. Types of properties बताइए. I want you to tell me what are the various types of properties. फटाफट से बोलेंगे बेटा. What are the types of properties? What are the types of properties? फटाफट से बोलिए. Good evening उदय. Good evening. आ जाओ रे बाबा. Any intelligent student of the class can tell me what are the various types of properties. Hello beta. Yes. Negi soldiers are present. Excellent. बोलिए बेटा. What are the various types of properties? क्या पता है आपको? फटाफट से टाइप करेंगे. Yes, of course. You are clear. You are clear till here. There is no doubt. Characteristic of the system to which a numerical value can be assigned, to which a number can be assigned at any given instant of time, at a given time, is known as property. Type of property: extensive property and intensive property. Excellent है रे बाबा. You are absolutely correct. Extensive property and intensive property. Now the next question is, what is extensive property? What is intensive property? फटाफट से बोलेंगे बेटा. टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. What is extensive property? What is intensive property? फटाफट से बोलो. And I'm telling you, 90% of the students will be saying, sir, extensive property is a property which depends on the mass of the system. Intensive property is the property which is independent of the mass of the system. यही बोलने वाले हो ना, क्योंकि अभी नेगी सोल्जर का टैग ही नहीं है ना. Yes. Now listen carefully बेटा. मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, तब उससे गाड़ी आगे बढ़ाएंगे. डेंसिटी. What do you think? Density is extensive property or intensive property? क्या लगता है आपको बेटा? Density
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? डेंसिटी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखो जनता बढ़ जाएगी, जनता बढ़ जाएगी। अब जनता दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे इंटेंसिव है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव है, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी है। अरे डेफिनेशन ही ऐसी है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। तो आपको लगेगा अरे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास पे तो डिपेंड कर रही है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? यस, आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट। Yes, yes, there are two types of people who are saying extensive and intensive. I don't care. अब यहां से जो मैं बता रहा हूं बेटा ध्यान से सुन के जाना. Now listen carefully. I'm giving you some definition which I will justify also. देखो मैं mass word यूज नहीं कर रहा हूं. Extensive property is the property which depends on the extent. Extensive property is the property which depends on the extent in bracket size of the system. extent का क्या मतलब होता है बेटा? साइज। अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंट पर डिपेंड कर रहे, आई विल से इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंट इन ब्रैकेट साइज ऑफ द सिस्टम। कुल मिला के कहानी आकर अटक गई साइज पर। मैंने आपको वो जो मास वाला वर्ड था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एक्सटेंट से रिप्लेस कर दिया। इट गिव्स मोर क्लैरिटी, इट मेक्स मोर सेंस। आई एम नॉट सेइंग यू पीपल आर रॉन्ग। मैंने ये नहीं बोला कि आपने गलत डेफिनेशन दी, आपकी डेफिनेशन भी सही है। जो मैंने यहां पर लिखा है इन प्लेस ऑफ मास एक्सटेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट दिस एक्सटेंट वर्ड विल बी गिविंग यू मोर क्लैरिटी। अभी 5 मिनट में प्रूव हो जाएगा बेटा, अभी 5 मिनट में प्रूव हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। Let us suppose I am having one rigid container. बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। Let us suppose I am having a rigid container, and let me say in this rigid container I am having some gas. Let me say in this rigid container I am having some gas. Let me say this gas is having mass m, volume capital V, temperature capital T, pressure capital P मान लीजिए, and let me say thermal conductivity K, and let me say viscosity mu. Let us suppose I am having a container. मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ गैस भरी हुई है। In that container I am having some gas and that gas is having mass m. उस गैस में मास, जो गैस का मास है वो m है, वॉल्यूम इज कैपिटल V, टेम्परेचर इज कैपिटल T, प्रेशर इज कैपिटल P, द थर्मल कंडक्टिविटी इज K and the viscosity is mu. अब मुझे पता करना है, of course all these are the properties, all these are the properties, yes, because these are the characteristics of the system to which I can assign a numerical value, to which I can assign a number, no problem. These all characteristics are the properties of the system, ये मुझे पता है। अब मेरा मेन एम है, my aim is to check which out of these which are intensive properties, which are extensive properties। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सी intensive properties हैं, कौन सी extensive properties हैं। अब देखो बेटा, whenever you want to check which properties are extensive properties, which properties are intensive properties, आप क्या करो? इमेजिनरली, अरे चाकू से नहीं काटना है रे बाबा, प्रीतम प्यारे चंपू, सर कहाँ है, मैं अभी कट करता हूं, सर कहाँ है, मैं अभी कट करता हूं। अरे ऐसा नहीं बोला रे बाबा चंपू। इमेजिनरली यू डिवाइड द सिस्टम इनटू फ्यू पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाँ चंपू एकदम चाकू के साथ रेडी रहता है रे बाबा, अपना चंपू चाकू के साथ रेडी रहता है। देखो इमेजिनरली, let me say I have divided this container into two half. Let me say top half, bottom half, top half, bottom half, and let me say ये जो bottom half है इसको भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। Let me say this part is 3/4, this is 1/4। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। What I have done is, this is top half, I kept as it is। ये जो bottom था, bottom part को मैंने 3:1 रेशो में डिवाइड कर दिया। मतलब this is 3 part
दिस इज वन पार्ट, फाइन। नाउ लिसन केयरफुली। अरे गैस तो हर जगह रहेगी ना। इमेजिनरली डिवाइड किया रे बाबा, चाकू से नहीं काटा रे बाबा। ये समझाओ कोई चंपू को रे बाबा। हाँ, चंपू इज एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड। नाउ लिसन केयरफुली बेटा। Any intelligent student of the class can tell me what will be the mass of gas in this top half? बटा m/2 हो जाएगा ना, वॉल्यूम v/2, नो डाउट। अच्छा, टेम्परेचर क्या होगा बेटा? अरे इफ इन दिस कंटेनर whatever the gas I am having that was having temperature capital T, तो ये बताओ ये जो टॉप हाफ है यहां पर गैस का टेम्परेचर कितना होगा? अरे ये तो कोई चंपो, ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा। टेम्परेचर विल बी T ओनली, प्रेशर विल बी P ओनली, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस विल बी K ओनली, डायनामिक विस्कोसिटी विल बी मी ओनली। एंड इफ समवन इज आस्किंग मी ओवर हेयर क्या होने वाला है, तो देखो बेटा, कैन आई से here the mass will be 3m/8। कैलकुलेशन कर ली होगी सब लोगों ने, कैलकुलेशन कर ली होगी सब लोगों ने। दिस पार्ट विल बी 3 टोटल का 3/8 होगा ना। अरे देखो यार, ये कैसे इंजीनियर है रे बाबा, पूरे का ये भी नहीं कर पा रहे। ये टोटल कितना होगा? हाफ होगा ना रे बाबा, हाफ होगा ना पूरे कंटेनर का, टॉप हाफ। तो ये कितना होगा? हाफ का 3/4, तो ये 3/8 पोर्शन होगा ना रे बाबा। एंड दिस इज हाउ मच? 1/8 ऑफ टोटल कंटेनर। पता नहीं कैसे कैसे चंपू है रे बाबा मेरी क्लास में। सर ये कैसे आया? अब आ गया समझ में? हाँ, दिस विल बी 3/8, टेम्परेचर इज T, प्रेशर इज P, थर्मल कंडक्टिविटी K, म्यू। अब मैं यहां पर देखता हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां पे मास कितना होगा? m/8। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? v/8। व्हाट विल बी द टेम्परेचर? T। व्हाट विल बी द प्रेशर? P। व्हाट विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी K। व्हाट विल बी the dynamic viscosity mu। Are you able to understand? जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज, द मोमेंट आई हैव चेंज द साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे ही मैंने सिस्टम का साइज चेंज किया, देयर वैल्यूज आर आल्सो चेंजिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर माय फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर देखेंगे, मास एंड वॉल्यूम आर ए कंटेनर, जैसे ही मैंने आधा किया इमेजिनरली, द मास इज आल्सो बिकमिंग हाफ, वॉल्यूम इज आल्सो बिकमिंग हाफ, बट रिमेनिंग थिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट। There is no effect on that 100%। क्या मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल लूं बेटा? क्या मुझे यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है? बेहतरीन कंक्लूजन। प्लीज ऑब्जर्व, क्या आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं? मास एंड वॉल्यूम आर डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट। मास एंड वॉल्यूम आर डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन साइज। Whereas other four, what are those other four? Temperature, comma pressure, comma thermal conductivity, comma dynamic viscosity, they are, can I say they are independent? Independent on extent। फटाफट से बोलेंगे रे बाबा। Can I say they are independent of the extent, they are independent of the size? Any intelligent student of the class can tell me mass and volume क्या हो गए बेटा? फटाफट से बोलो, mass and volume क्या हो गए? Mass and volume are what? Tell me quickly, mass and volume are what? फटाफट से बोलेंगे बेटा, mass और volume क्या हो गए यहां से? Intensive property और extensive property? Mass and volume are intensive property और extensive property। यहां से आपको क्या समझ में आया? Mass and volume are 100% extensive properties, they are depending on the extent। And whereas these are independent of the extent, so they are intensive properties। यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? धमाकेदार तरीके से मेरे साथ क्लियर है यहां तक? बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यस यस, एक्सीलेंट है रे बाबा। यस यस, आई एम वेरी हैप्पी, I'm very happy। Yes, excellent। चिराग very good, मान सिंह very good, दीपक very good, विशी very good, अरे वाह वाह वाह, साई धीरज very good, ब्रिजेश very good, excellent, महतो very good है रे बाबा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मयूर excellent है रे बाबा, बिल्कुल झमाझम तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल झमाझम तरीके से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, यस, क्रिस्टल क्लियर। अरे
एक नंबर है रे बाबा। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका टेस्ट लेना तो बनता है बेटा। अगर आपको समझ में आ गया तो बिना टेस्ट के कैसे समझ में आया वो मुझे डाउट है। तो एक टेस्ट ले लेता हूं, अभी अभी ले लेते हैं टेस्ट, अभी अभी ले लेते हैं टेस्ट। रेडी हो जाओ रे बाबा, और क्या, अभी स्टार्ट कर देता हूं दोस्त, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ अभी के अभी हो जाएगा रे बाबा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो हाँ और क्या सर, टेस्ट, हाँ बिल्कुल टेस्ट है बाबा। अच्छा आप लोगों को पता है ना, दिस सैटरडे यू विल बी हैविंग द प्रैक्टिस सेशन। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा, इस सैटरडे आपको प्रैक्टिस सेशन है। मैं बेटा आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, सारे PYQs गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के, IFS के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाला, इनफैक्ट पीके नाग आल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो रेडी रहना बेटा, मैं काफी प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूं। आई एम टेलिंग यू दिस कोर्स विल बी मोर देन 150 आवर्स, 150 घंटे से ऊपर जाएगा बेटा, ध्यान रख लेना। और इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो फिलहाल जो मेरे को समझ में आया, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड हेयर मेरे पास कुछ चीजें मिल गई थी। हाँ टेम्परेचर, प्रेशर मिल गया था, थर्मल कंडक्टिविटी, डायनामिक विस्कोसिटी। चलो अभी के अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेलोसिटी का बताना बेटा, वेलोसिटी कुछ नहीं, बस ऐसा देख लो, देखो बेटा ध्यान से, बहुत इजी है आंसर करना, बहुत इजी है आंसर करना। ये गैस है, ये गैस है। लेट अस सपोज दिस कंटेनर इज मूविंग विद द वेलोसिटी c। मान लो ये जो कंटेनर है ये वेलोसिटी c से मूव कर रहा है। अब आपको ये देखना है, इमेजिनरली इफ यू आर डिवाइडिंग द कंटेनर इनटू 3 पार्ट्स, तो ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इमेजिनरली ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये तो बहुत इजी है रे बाबा, बोलो रे बाबा। एक्सीलेंट, इंटेंसिव, इंटेंसिव। देखो बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो मैं हूं सिस्टम, मैं हूं सिस्टम, मेरे 3 हिस्से कर लो, मैं हूं सिस्टम, मेरे 3 हिस्से कर लो। एक ही हो गया राइटिंग पेन, ये हो गया रिमोट, और ये देखो आप, देखो 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 ध्यान से देखो, ये है सिस्टम। ठुमक 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 ठुमक, सिस्टम इज मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो मीटर पर सेकंड कहां से बोलूंगा मीटर पर सेकंड कहां से बोलूं। सिस्टम इज मूविंग ठुमक 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 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वाला हिस्सा किससे मूव कर रहा है, अरे when the system is moving 10 centimeter per second, this is also moving at 10 centimeter per second, this is also moving at 10 centimeter per second। तो वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी, साइज पे डिपेंड नहीं करी, छोटा है बड़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट and this part will remain same। I hope each and everyone is clear till here। चलो, वेलोसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, C लिख रहा हूं बेटा, C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल यहां पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया बेटा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताना, तो चलो आपको एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी बताना, बताओ बेटा। काइनेटिक एनर्जी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फटाफट से बताना बेटा। काइनेटिक एनर्जी इज इंटेंसिव, नहीं बेटा, अरे प्लस पे करवाओगे क्या प्रैक्टिस, पांडे साहब बोला तो फ्री में हो रहा है रे बाबा। आई विल बी टेकिंग द स्पेशल क्लास, प्लस पे नहीं होगा, प्लस पे तो अलग से चल ही रहा है रे बाबा, जल्दी से बोलिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा। देखो वेलोसिटी इज सेम, मेरा मास ज्यादा है, इस पेन का मास कम है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग लेसर काइनेटिक एनर्जी ना, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज। काइनेटिक एनर्जी इज एन एक्सटेंट, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, और एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू टेक बेटा, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
अरे चंपू, कॉमन सेंस होना चाहिए ना रे बाबा। क्यों मैं बेवकूफ हूं क्या कि यहां पर लिखूंगा और फिर बोलूंगा अरे गलती से यहां लिख दिया था, ये तो इंटेंसिव। अरे चंपू, आई हैव रिटन इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैटेगरी, तो ये एक्सटेंसिव ही तो होगा रे बाबा। इतना तो कॉमन सेंस लगा लो रे बाबा, जो लोग इंटेंसिव लिख रहे हैं। सर इंटेंसिव, अरे चंपू, आई हैव रिटन इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट हैज टू बी एक्सटेंसिव, तभी तो वहां लिखा होगा। नाउ माय फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। एनी एनर्जी will be extensive property only। अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ और एग्जांपल देता हूं। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, these three are also extensive properties। वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, वक्त आने पे। द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, आई विल बी टेलिंग यू। अब मुझे ये मत पूछना सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मैं बताऊंगा रे बाबा। जीरो पे हो अभी आप, जीरो पे, वहां पे मत चढ़ो। सर व्हाट इज एंथैल्पी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड नॉट टू वरी। सर व्हाट इज एंट्रोपी, मैं बता रहा हूं एंट्रोपी 25 आवर्स आई एम गोइंग टू टीच, 25 आवर्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कितना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सो डोंट वरी बेटा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। चलो फिलहाल आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बताओ बेटा, स्पेसिफिक हीट बताओ, स्पेसिफिक हीट बताओ, स्पेसिफिक हीट। अरे मजा 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 मजा, स्पेसिफिक हीट। आंसू बताओ बेटा, स्पेसिफिक हीट। Any intelligent student of the class can tell me specific heat। C से represent करेंगे specific heat। when I'm saying it can be specific heat at constant volume, CV, CP भी हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, specific heat at constant volume और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा बेटा, 100। अरे चंपो, क्या होगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अरे कम से कम देख तो लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में डाल रहा हूं ना। चलो एक चीज और पूछता हूं बेटा, एक और चीज पूछता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, बताओ बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं धोखा भी दे सकता हूं मैं धोखा भी दे सकता हूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बार बार यही जहां जहां है वहीं लिख रहे हैं। मैं धोखा देने में बहुत उस्ताद हूं बेटा, मैं धोखा भी दे सकता हूं इस ऐसे मामले में जहां पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हो, मैं धोखा भी दे सकता हूं बेटा चलो ये बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज धोखा हो गया तो फिर मुझे गाली मत देना बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज में बढ़ जाएगी दुनिया, इलेक्ट्रिक चार्ज में बढ़ जाएगी दुनिया इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपन लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स वाले सर को याद करो, फिजिक्स वाले सर को याद करो। क्यों चल रोहिणी, फिजिक्स वाले सर को याद करो, क्यों चल रोहिणी। हाँ ऐसे होता था ना, व्हाट इज दिस एन, ये एन क्या होता है बेटा, व्हाट इज दिस एन, एन कुछ तो बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कुछ लोग तो नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं अरे यार कुछ तो सोचो रे बाबा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इज्जत रखो फिजिक्स वाले सर की हाँ नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं कुछ लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज दिस ई बेटा, E is the charge on one electron ना, हाँ E is the charge on one electron ना।
आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा डोंट यू थिंक, जरा ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाना बेटा, क्या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा? इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इस हिस्से में उससे कम होंगे, इस हिस्से में सबसे कम होंगे ना? अरे ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ, अरे इमेजिनेबली इफ यू डिवाइड देन यू कैन ऑब्जर्व बेटा, इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां उससे कम होंगे, यहां सबसे कम होंगे। ऑफ कोर्स number of electrons will be depending on the size of the system, then 100% electric charge will be depending on the size of the system. इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया बेटा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई डाउट नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। अब ध्यान से सुन लेना, नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली, आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मैग्नेटाइजेशन, फटाफट से टाइप करो बेटा, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा मैग्नेटाइजेशन अगर आपको इंटरमीडिएट में याद आ रहा होगा तो मैग्नेटाइजेशन किस पर डिपेंड करता था? इट वॉज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डाइपोल्स, इट वॉज डिपेंडिंग ऑन, याद आ रहा है ना, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ डाइपोल्स। So of course, as the size of the system changes, number of dipoles will change. As the number of dipoles will change, 100% magnetization will change. अगर कोई यहां पर अभी बेटा केमिकल का स्टूडेंट है तो केमिकल में एक टर्म आता है बेटा, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं बेटा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो फिर से बात आती है अब डेंसिटी पर। बताओ बेटा डेंसिटी, अब जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से आप बताओ, डेंसिटी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से आप बताओ, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डेंसिटी की बेटा, फटाफट से बताओ। के आई, वेरी गुड बेटा, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फटाफट से बताइए बेटा। टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, टाइप करते जाओ रे बाबा, टाइप करते जाओ रे बाबा, बोलते जाओ, डेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलते जाएंगे बेटा। डेंसिटी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंटेनर, whole rigid container. In that whole rigid container, the mass of the gas was m, the volume was capital V. तो अगर मैं होल कंटेनर की बात करूं तो वहां पर डेंसिटी क्या होगा बेटा? देखो मान लो होल कंटेनर तो था, ये फर्स्ट पार्ट था, लेट अस सपोज दिस इज सेकंड पार्ट एंड लेट अस सपोज दिस इज थर्ड पार्ट। तो आपको याद आ रहा होगा होल कंटेनर में तो जो मास था वो स्मॉल m था, वॉल्यूम कैपिटल V था। हियर the mass is m by 2, volume is v by 2. If I am not wrong, here mass was 3m by 8, volume is 3v by 8, and this third part mass was m by 8, volume was v by 8. अब निकालो बेटा, अगर मैं होल कंटेनर की बात करूं तो डेंसिटी क्या होगा बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m by v आ गया बेटा, कोई डाउट ही नहीं है। यहां देखो जरा एक बार, what will be the density in this first part? How much is the mass? m by 2. How much is the volume? v by 2. So how much is the density in this first part? m by v. You see the density of the gas in this second part beta. How to find the density of the gas in this second part? Mass is how much? 3m by 8. अरे लाइक करते जाओ रे बाबा, 3v by 8 कितना आ गया? m by 8, m by b. सिमिलरली अगर आप यहां पे भी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ दिस स्मॉलेस्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, m by 8 divided by b by 8. So what is the density I am getting? Can I say I am getting m by b only? So are you able to understand बेटा मैं क्या बोल रहा हूं?
चाहे आप पूरा कंटेनर लो m by v है, whether you take this top part m by v, whether you take this second part m by v, whether you take this smaller part m by v. अरे हर जगह तो m by v ही है रे बाबा, everywhere I am getting m by v. What is the meaning of that? What is the meaning of that? 100% density is an intensive property. 100% density is an intensive property. There is no doubt. There is no doubt. Density rho is an intensive property. Now any intelligent student class, आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? फटाफट से बोलिए बेटा. यू हर्ड अबाउट स्पेसिफिक वॉल्यूम? एनीवन इन द क्लास बेटा? लेट मी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल v. व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? फटाफट से बोलेंगे बेटा. आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है तो बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? Volume divided by what beta? Mass. Now any intelligent student of the class can tell me specific volume is an intensive property or extensive property. फटाफट से बता देंगे बेटा जो specific volume है वो intensive property है या extensive property है. बोलिए बेटा specific volume is an intensive property or extensive property. I want each and everyone to answer in chat box. Excellent, excellent, very good बेटा, वेरी 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 हैप्पी. अब देखना बेटा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. देखो अभी हमने क्या देखा? जस्ट नाउ वी हैव सीन मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट जस्ट नाउ वी हैव सीन डेंसिटी इज व्हाट? Intensive property. So can I give you one beautiful conclusion? The ratio of two extensive properties is always intensive property. अरे देखो ना रे बाबा, देखो mass is extensive, volume is extensive. So extensive, the ratio of two extensive properties, what I am getting intensive property. अब बताओ, अब तो आप बता दोगे बड़ी easily. देखो ध्यान से बेटा, this is extensive property. 100% this is intensive property, sorry extensive property. So what can you say about specific? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. आई होप ईच एंड एवरी. सिमिलरली नाउ लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग यू फ्यू थिंग्स. सिमिलरली देखना बेटा ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ कमिंग. सिमिलरली specific internal energy. Similarly, specific internal energy small u, which is equal to what? Internal energy, which is equal to what? Internal energy. यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला बेटा. Internal energy. How are we going to represent internal energy? By capital U divided by mass. Any intelligent student of the class बोलो बेटा specific internal energy will be extensive property or intensive property? फटाफट से बोलेंगे बेटा specific internal energy will be extensive property or intensive property. फटाफट से बोलेंगे बेटा, फटाफट से बोलेंगे. just now I have told you internal energy is what? extensive property. extensive property divided by extensive property is 100% intensive property. कोई डाउट ही नहीं है. similarly specific enthalpy. Similarly, specific enthalpy small h, it is equal to what? Enthalpy capital H divided by mass m. This is also intensive property. Specific enthalpy भी आपकी intensive property है.
specific entropy, small s, it can be written as what? Entropy in bracket capital S. देखना बेटा, एंट्रोपी को कैपिटल एस लिखा है, डिवाइडेड बाय मास m. This is also intensity property. Similarly, specific pressure क्या होने वाला है बेटा? स्पेसिफिक प्रेशर स्मॉल p will be equal to what? Pressure in bracket capital P divided by mass. फटाफट से बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? टाइपिंग चैट बॉक्स रे बाबा, स्पेसिफिक प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? स्पेसिफिक प्रेशर का बताइए, फटाफट से बोलना बेटा। स्पेसिफिक प्रेशर, दिस इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट। यस और नो, यस और नो, टाइपिंग चैट बॉक्स रे बाबा। पूरी थर्मो होगी बेटा, पूरी थर्मो होगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लिखा है थंबनेल पे फुल कोर्स। फुल कोर्स का मतलब समझ जाओ, और नेगी सर ने एक बार जो बोल दिया वो कंप्लीट होती है, उस चीज को भी याद रखना। अरे जो लोग आंसर दे रहे हैं, दोज हु आर गिविंग द आंसर, पहले ये तो देख लो स्पेसिफिक प्रेशर आपने कौन सी बुक में पढ़ा है? इन विच बुक यू स्टडीड स्पेसिफिक प्रेशर? इन विच बुक यू स्टडीड स्पेसिफिक प्रेशर? मुझे ये बताओ कौन सी बुक में आपने स्पेसिफिक प्रेशर पढ़ा है? बेटा बेसिक थर्मोडायनामिक्स बोला है, पहले बेसिक पढ़ो। मैं तो पहले बेसिक पढ़ लो बेटा। फ्लूइड तो खत्म हो गया बेटा, लिसन केयरफुली, ये गलती मत करना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या मैं यहां से बोल दूं, कैन आई से वन ब्यूटिफुल थिंग बेटा, इन थर्मोडायनामिक्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन थर्मोडायनामिक्स for the specific properties are defined only for extensive properties. Can I say in thermodynamics specific properties are defined only for extensive properties? Are you clear till here? बोलो रे बाबा, यहां तक आप लोग क्लियर हैं? Now listen the beautiful conclusions बेटा। कंक्लूजन नंबर 1, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जिंदगी भर याद रखना कि ये क्वेश्चन नेगी सर ने पूछा था और हमने गलत आंसर बताया था। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही है। The ratio of two extensive properties will be an intensive property. Specific properties are defined as extensive properties per unit mass. जो specific properties होती हैं उनको हम कैसे define करते हैं बेटा? Extensive property per unit mass. Specific properties such as specific volume, specific internal energy, specific enthalpy, specific entropy are intensive properties. Are you clear till here? यहां तक क्लियर है आप लोग? जल्दी बोलिए बेटा। आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। सुपर 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 क्लियर। अब बेटा आई नीड टू डिस्कस वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट डिस्कस करना है। उससे पहले काफी लोग हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूछा, तो उनको थोड़ा आइडिया दे दी जाए। बेटा ये है ज्ञान गंगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मी सर आपकी फ्री क्लासेस चाहिए। Sir, we need your all free classes in a systematic way. Beta, whatever the free class I have taken on YouTube, whatever the free class I have taken on an academy platform, I have arranged in a proper systematic way. आपको कुछ नहीं करना, ये जो ज्ञान गंगा है ना बेटा, tinyurl.com/negi10 code,
नेगी 10 कोड में कोई स्पेस नहीं है, नेगी 10 कोड, अरे ये नेगी 10 नेगी सोल्जर्स का कोड है रे बाबा, नेगी 10 कोड, applications of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, previous gate questions, special session thermodynamics, something like this will open. And the moment, let us suppose you want to see the free classes of fluid mechanics, इसको एक बार click कर लेना. The moment you will click on fluid mechanics, something like this will open. What is the meaning of this? First column is telling you the name of the chapter, second column is telling you whatever the chapters are there, third column whatever the lectures are there, third column is telling you whatever the topics are covered in that particular lecture, fourth column is telling you whatever the video you want to watch. यहां पर क्लिक कर देना, जिस भी लेक्चर का वीडियो देखना हो यहां पे क्लिक कर देना. एंड दिस फिफ्थ कॉलम विल बी गिविंग यू द नोट्स, क्लास नोट्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड दिस इज द स्पेशल क्लास व्हिच यू पीपल आर हैविंग टुडे. ये स्पेशल क्लास है जो आज है आप लोगों के लिए. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021, जो लोग गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, they must attend today's class. उनको आज की क्लास अटेंड करना है. if they are installing the Unacademy learning app first time, they should put the invite code as NEGI10. it is mandatory for all NEGI soldiers. So today at 10:15 PM we'll be discussing practice questions of second law of thermodynamics. Okay, now I want to discuss one more thing beta. I want to discuss one more thing. Shall we move forward? बोलो रे बाबा, आगे बढ़ा जाए. Shall we move forward? बोलो 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 रे बाबा, बोलो रे बाबा. Shall we move forward? Yes, 100% we should move forward. अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताना आपको. देखना बेटा, आपको याद आ रहा है? The total mass was m. I'm recollecting that particular rigid container where I was having some gas. Total mass was m. The mass of first part was m by 2. The mass of second part was 3m by 8. The mass of third part, that is small part, was m by 8. बेटा क्या मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन बैलेंस है? m by 2 plus 3m by 8 plus m by 8 will be m only. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? m is equal to m of first part, m of second part plus m of third part. Now look at here beta. If I try to write the same thing for temperature, तो देखो टेम्परेचर के लिए तो ये आएगा ना बेटा. टेम्परेचर ऑफ टोटल कंटेनर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ थर्ड पार्ट. दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ थर्ड पार्ट. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फटाफट से बताना, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो इफ यू वांट द टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, व्हाट यू नीड टू डू इज whatever the parts of the system we are having, you add all those parts extensive property and you will be getting the extensive property of total system. अगर मुझे पूरे सिस्टम का मास निकालना है तो वो सिस्टम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड है, so I will be adding the mass of all the parts and I will be getting the total mass. That means extensive properties are additive in nature. What I'm saying, listen carefully. Extensive properties are एडिटिव इन नेचर. उनको आप ऐड करके टोटल सिस्टम का प्रॉपर्टी निकाल सकते हो. बट इफ यू ऑब्जर्व हियर, टेम्परेचर इज व्हाट बेटा? टेम्परेचर इज व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? 100% टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इफ टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट गेटिंग एडेड. इट इज नॉट गेटिंग एडेड. इट इज नॉट एडिटिव. तो एक कंक्लूजन सुन लेना बेटा. Please observe one conclusion. In case of extensive properties, its values for the overall system. In case of extensive properties, its value for the overall system is the sum of its values for the parts in which system is divided. Is the sum of the parts in which the system is divided. That is
Extensive properties are additive in nature. Intensive properties are not additive in nature. Are you clear till here? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? Yes, yes, excellent, excellent. अरे कुल मिला के अगर आपको पूरे कंटेनर का मास निकालना है, लेट अस सपोज इमेजिनरली आई डिवाइडेड द कंटेनर इनटू 3 पार्ट्स. आप पहले कंटेनर का पहले पार्ट का जो मास है, दूसरे पार्ट का जो मास है, तीसरे पार्ट का जो मास है, उन सबको ऐड कर दीजिए. यू विल बी गेटिंग द मास ऑफ होल कंटेनर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. किसी को डाउट तो नहीं है? और अगर समझ में आ गया तो यार एक बार टाइप कर दो मजा 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 मजा. यस, अरे झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा. यस, ब्यूटीफुल. एंड दोज हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स, मैं बोल रहा हूं बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. और शेयर करो रे बाबा. शेयरिंग इज केयरिंग. जितना आप शेयर करेंगे उतने ये वीडियोस आगे जाएंगे. जितने ये वीडियोस आगे जाएंगे उतने आपके नेगी सर आगे जाएंगे. जितने आपके नेगी सर आगे जाएंगे उतनी एनर्जी से आपको पढ़ाएंगे. Are you getting? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.